NURST, GAT, PAST, PIAST, UET. This discussion is with the future generation that is to come and take control of the country. My dear students, engineer is a big person. Engineer is not a small person. Engineer is always a big person who is a visionary person, who guides the nation, who gives the solution, who tells what you are supposed to do to the laymen who are just walking around, to the people who are living in the villages. Engineer is a big person. And today, this session, I'm having with the future engineer. Mind it. The only thing which makes you small or big is the vision. And that is called think big. Think out of the box. Today, I'm coming right from Lahore. Yesterday I was there in J Road campus with the same session. Later in the evening I was in Shadman Skips with the parents orientation, students, and then with Gadi Shout. And today in the morning I'm right with you. Life never stops. Life just keep on moving. But question is, why you are doing, how you are doing, when you are doing, is a very important question. If you don't understand the things around happening, you stand nowhere, absolutely nowhere. You will diminish. Do you get my point? Yes. Are you understanding what I'm saying? Yes. And it is very, very, very important. बेटा खड़े हो जाए, पहले गला ठीक करें. और बहुत सारी ऐसी खड़े हो जाए ना, स्टैंड अप. तो गला ठीक कर रहे हैं. So it is very important that you have to understand your life. You have to understand. Yes, you have to. First of all, just understand your life. Only your life. Nobody is ready to tolerate you. Let me be very open to you. Nobody. Neither your parents, neither your teacher, nor me. Sorry. There is no space for stupids. There is no space for an ordinary person. Sorry to say this thing. Am I right? Yes, sir. There is no space. Sorry, आप किसी से भीख भी मांगेंगे तो भीख नहीं देगा. Sorry. There is no space. And this is all happening due to a vision. And sorry, that is not our vision. That is an imported vision. Accordingly, the things are happening. अब यहाँ पे आपका रोल क्या है? That is the question of the day. आपने अपने आप को किस तरह सर्वाइव करना है? That is the question of the day. आपने कहाँ एग्जिस्ट करना है? That is the question of a day. Try to understand मैं क्या कह रहा हूँ. आपने अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है? आपने अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव करना है? आपने 4 years, 6 years, 10 years कैसे सर्वाइव करवाना है? आपने होने वाली अपनी जनरेशन को कैसे सर्वाइव करवाना है? और सबसे इम्पोर्टेंट, मुल्क को कैसे बचाना है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो उसके लिए आपको डिजाइन करना है, अपने आप को रीडिजाइन करना है. Yesterday I was talking to the parents and the students there. आज तो मुझे मेरा दिल चाहता है कि आपके साथ आपके पेरेंट्स बैठे हैं, जैसे मैंने इवनिंग में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इकट्ठे बिठाया. I was talking mixed gathering there. And I was telling them, क्योंकि मैं पेरेंट्स भी हूँ. I'm a father, I'm a grandfather. So I know the time is limited. और आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है. सॉरी, आपका कॉलेज का टेन्योर खत्म हो रहा है. कॉलेज इज नॉट रेडी टू टेक यू बैक इन सेकेंड ईयर. आपने आगे निकलना है. और जब आपने आगे जाना है, आपके पास फिर गलती की गुंजाइश नहीं है. आपका डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है. मतलब आपका एक सही स्टेप आपको बहुत हाई वाईफाई कर देगा. आपका एक गलत स्टेप आपको बहुत नीचे ले जाएगा. A few days back, I was there with a session in
Kids College in Mir Chowk, and later I went for prayers in the mosque. Around about 1:45 p.m. नमाज हो चुकी थी, मैंने वुज़ू किया. I was about to start my prayers, तो एक लड़का मेरे पास आया. Do you know that boy was from KIPS Faisalabad? He had the same session with me there in Faisalabad. He studied in Fast University. He completed his electrical from there. And he told me, sir, I am a fresh graduate. Just after passing my degree, I got a job of 40,000 rupees. उसकी मदर की पहले डेथ हुई थी, फादर की एग्जैक्टली चंद रोज पहले डेथ हुई थी. And he was lucky that he was having a job of 40,000 rupees. इस वक्त जब के मुल्क जो है वो अबाउट दिवालिया होने में, आपके रिजर्व्स नहीं, आपके बैंक्स जो हैं वो फारिग हो गए, उसमें जो पैसे पड़े हैं वो तो भीख मांगे हुए पड़े हुए हैं. और ये स्टेटमेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि मार्च में 22.2 बिलियन डॉलर्स मौजूद थे, इस वक्त 7.9 बिलियन डॉलर मौजूद है, और वो आपके नहीं, वो शो ऑफ किए हुए. माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या वो बच्चा खुशकिस्मत नहीं है कि जिसके बाद 40,000 की जॉब है, और स्पेशली उस पिलर से इस पिलर में चल कर आया मेरे पास. मैं आपसे नहीं जानता था, मैंने सर आप वकील भी नहीं होती है, सर मैंने आपका लेक्चर किया 4 years back, 4-5 years back. ये रिमेंबर क्या, उसने कौन सी बात रिमेंबर की? क्वेश्चन है. वो 4 साल फास्ट में पढ़ा, और 4 साल जब वो फास्ट में पढ़ा तो वहां से उसको की बात समझ नहीं आई, और यही फास्ट फैसला वहां से पढ़ गया. और मजे की बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, मजे की बात सिर्फ एक ही है, आपके एक गलत डिसीजन कहाँ लेके जाता है, एक सही डिसीजन कहाँ लेके जाता है. कल मुझे आई हैड अ वॉइस मैसेज फ्रॉम समवेयर, दे आस्क्ड मी कि सर वो हम बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में रिकमेंड करना चाहते हैं. मैंने जब वो सुना, दैट वाज अ टीचर हु गेव अ मैसेज, तो उन्होंने मेरी सजेशन दी. इत्तेफाक से उस यूनिवर्सिटी को लाहौर जाके मैंने विजिट किया था. मेरी आदत है कि जहाँ मैं जाता हूँ मेरी कोशिश होती है मैं यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करता हूँ. मेरी कोशिश होती है कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स टू गेट द लेटेस्ट फीडबैक अबाउट द थिंग्स हैपनिंग. मैंने उस वक्त टीचर को कोई आंसर नहीं दिया. आई केप्ट ऑन थिंकिंग. टुडे इन द मॉर्निंग वो व्हाट्सएप मैसेजेस को मैं रिप्लाई कर रहा था एट 5:30, 5:40 PM. आई वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स फैसलाबाद. मैंने उन टीचर को आंसर दिया, मैं कहा सर क्या आप अपने बेटे को इस यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करेंगे? आप मेरे बेटे बैठे हैं सर, तो क्या आप उसको रिकमेंड करेंगे वो यूनिवर्सिटी, और टॉप की यूनिवर्सिटी छोड़ के? क्वेश्चन बनता है, मतलब आपकी फीस आपके पेरेंट्स ने दी है ना, आपके वालिदैन ने दी है ना आपकी फीस, बताएं तो सही मुझे. आपकी किसी हमसाये ने तो नहीं दी? क्या किप्स कॉलेज में आपने 1.5 साल गुजारा है, बाकी चंद माह आपके रह गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. होपफुली मई में इट इज गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू द पेपर्स, होपफुली. मुझे बताएं ये 1.5 साल आपने गुजार दिया, क्या आप समझते हैं कि आपका टाइम यहाँ पे इफेक्टिव था? कितने बच्चे कहते हैं नहीं था? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, क्या आप समझते हैं कि आपका टाइम इफेक्टिव था? जो कहते हैं इफेक्टिव था रेशियो है. टीचर को ना देखें, टीचर भी हमारे भाई हैं, हम आपसे सीखने के लिए, मैं तो सीखने के लिए आया. और कितने बच्चे कहते हैं इफेक्टिव नहीं था? बेटा याद रखिएगा, जिंदगी में न्यूट्रल कभी नहीं होता, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है. अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. नंबर 1, फर्स्ट ईयर आपने पढ़ी यहाँ पे सिलेबस फिजिक्स का कवर हुआ? बेटा यस और नो? केमिस्ट्री का सिलेबस कवर हुआ?
कंप्यूटर का सिलेबस कवर हुआ? बेटा बात बीच में नहीं करनी, अगर बात करनी है तो बी ओपन। फिजिक्स का सिलेबस कवर हुआ? केमिस्ट्री का कवर हुआ? कौन सी चैप्टर रह गया? 10th चैप्टर रह गया, बाकी सारे हो गए। यानी 99% आपका कवर हो गया था, कहीं जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। दैट्स ग्रेट। अगर उसमें कोई चंद चीजें रह गई थी, पूरा चैप्टर तो नहीं रह गया, तो पूरा रह गया था, पढ़ाई नहीं था। मैथमेटिक्स का पूरा पढ़ा दिया, फिजिक्स पूरा हो गया था, केमिस्ट्री का सिर्फ चैप्टर 10 की बात क्या रह गया था, उर्दू कंप्लीट हुई थी, इंग्लिश हो गई, इस्लामिक हो गया। बेटा यू आर लकी कि आपका ये काम इधर किप्स कॉलेज में हो गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली आप हैरान होंगे कि मार्केट अगर कभी घूमे, अभी तो आप स्टूडेंट हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि इतनी केयर कहीं नहीं होती है। मैं आपको ऑनेस्ट, मैं खुद स्टूडेंट था, मैं हेड ऑफिस से शुरू था, सिर्फ इस लेक्चर के लिए नहीं होती। लेकिन सर आबिद वजीर यूनिवर्सिटी किप्स, उनका विजन क्या है? उनका विजन ये है कि बच्चा जब किप्स कॉलेज में आता है, दो काम है जो हमें करते हैं। एक ये है कि उसकी एफएससी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, और दूसरा काम ये है कि उसकी एंट्री टेस्ट अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? और तीसरा ये है कि यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है। सर आप खुद यूयूटी से पढ़े, मैं खुद यूयूटी से पढ़ा हूँ। आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग टू अ बिग यूनिवर्सिटी जहां आपने 4 साल गुजारते हैं, 4 years। बेटे ये क्या कर रहे हैं लाहौर से गए, क्योंकि सेकेंड ईयर अभी आपका इंशाल्लाह जनवरी तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, फरवरी में आपका रिवीजन टेस्ट सेशन शुरू हो जाएगा, और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपका रिवीजन सारा हो जाएगा। किप्स के पास पूरा प्लान है, वी हैव गॉट देयर होल प्लान। हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हमें प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जब स्टूडेंट और वी पीपल, टीचर्स, हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है। टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चा एब्सेंट हो रहा होता है, टीचर सिलेबस को स्ट्रेस के मुताबिक लेके जाता है, बच्चा स्लो हो रहा होता है, और फिर ऐसी सूचना लगती है जैसे भी केमिस्ट्री की बात है कि उसमें से ये रह गया। टीचर ने मंजरों पर नहीं लाना। हमारा ये विजन है, किप्स का विजन है कि हम इस तरह पढ़ाने आपको कि चीज़ें आपकी किप्स कॉलेज में ही कवर हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? ये बहुत बड़ा विजन है। यानी आप अंदाजा करिए कि सर ने इंजीनियरिंग की, उसके बाद सर ने अपनी जॉब स्टार्ट की सराबिश में, अगर सिविल छोड़ के उन्होंने किप्स विजन सेट किया। वो क्या था? नेशन डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, कि हम अपने मुल्क की तमीर करें क्वालिटी एजुकेशन से, कि आप यहाँ से क्वालिटी प्रोड्यूस करें। यानी जो बच्चा रॉ मटेरियल आता है उसको प्रोसेस करें, उसकी फर्टिलाइजेशन करें, उसके दिमाग की वो जो अंदर गिरें होती हैं उनको रिजॉल्व करें। कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन समझते हैं आप? क्या इस वक्त आपकी कन्फ्यूजन नहीं है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है? क्या इस वक्त आपकी ये कन्फ्यूजन नहीं है कि आगे मैं किस डिपार्टमेंट जाऊँ? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, सिविल, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल, ज्योग्राफी, माइनिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एवियोनिक्स, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मैं किस में जाऊँ? अब मजे की बात यह है कि दिस इज अ वन टाइम शो। अगर इलेक्ट्रिकल में जाएगा फिर उसकी लाइफ इलेक्ट्रिकल में गुजरेगी, जब मैकेनिकल में जाएगा उसकी लाइफ है इंडस्ट्रियल